and bring you the stories that are shaping the future of this country. In just 5 short months, the political landscape has shifted dramatically, leaving many to question whether the opposition's moment has passed and whether the BJP-led NDA has once again solidified its dominance. What was once seen as a possible victory for India alliance now seems to be unraveling, as the results from crucial states like Maharashtra and Jharkhand raise uncomfortable questions about the strength and unity of the opposition. Tonight, we will dive deep into the electoral trends, the surprising reversals for the opposition, and the crucial role of regional dynamics that could reshape the course of upcoming elections. Is the India bloc really on back foot, or is there more to this story that needs the eye? And what does this mean for the Congress party, whose struggles and in fact at the state level are becoming harder to ignore? Stay with us as we analyze the shifting stance of Indian politics and try to make sense of what is next for the nation. Let's get started. In the world of Indian politics, change often happens at a rapid pace, and the last 5 months have proven this point emphatically. After the BJP-led NDA's disappointing performance in the 2024 Lok Sabha elections, analysts and political pundits began questioning the future of Prime Minister Narendra Modi's leadership and the BJP's national appeal. Many assumed the opposition India bloc, with its diverse coalition of parties, might seize this moment to unite and challenge BJP's grip on power. However, the political tides have shifted dramatically. Rather than seeing the India bloc strengthen, recent electoral results have shown it to be vulnerable, especially with its most significant setbacks in Maharashtra, one of the country's most crucial battlegrounds. Once seen as a rising alternative, the opposition is now grappling with internal discord and weakening of its national stature. अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को कांग्रेस की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जब मैं पिछली बार भाजपा मुख्यालय आया था तो मैंने हरियाणा से मिले आशीर्वाद पर आपसे बात की थी। तब हमें गुरुग्राम जैसे शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी अपना आशीर्वाद दिया था। अब आज मुंबई ने, पुणे ने, नागपुर ने, महाराष्ट्र के ऐसे सभी बड़े शहरों ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। शहरी क्षेत्रों के गरीब हो, शहरी क्षेत्रों के मिडिल क्लास हो, हर किसी ने भाजपा का समर्थन किया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश है आधुनिक भारत का, विश्व स्तरीय शहरों का। हमारे महानगरों ने विकास को चुना है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विकास में रोड़े अटकाने वाली राजनीति को नकार दिया है। आज बीजेपी हमारे शहरों में ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो, आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हो,
कोस्टल रोड और समृद्धि महामार्ग जैसे शानदार प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट्स का आधुनिकीकरण हो, शहरों को स्वच्छ बनाने की मुहिम हो, इन सभी पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जोर है। आज का शहरी भारत ईज ऑफ लिविंग चाहता है और इन सब के लिए उसका भरोसा बीजेपी पर है, एनडीए पर है। साथियों, आज बीजेपी देश के युवाओं को नए नए सेक्टर्स में अवसर देने का प्रयास कर रही है। हमारी नई पीढ़ी इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए माहौल चाहती है। बीजेपी से ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, निर्णय ले रही है। हमारा मानना है कि भारत के शहर विकास के इंजन है। शहरी विकास से गांवों को भी ताकत मिलती है। आधुनिक शहर नए अवसर पैदा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में आए और बीजेपी एनडीए सरकारें इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में The recent Maharashtra elections marked a pivotal moment in Indian politics. Once considered a stronghold for the opposition, Maharashtra has now turned decisively in favor of BJP-led Mahayuti alliance, despite hopes for a vibrant challenge from the opposition India bloc. Particularly the Mahavikas Aghadi, the results were a sobering reality check. The Congress party's lackluster performance in the state underlined its inability to effectively mobilize voters, especially in key regions like Vidarbha, which is crucial for any party aiming for a majority. The BJP's focused outreach and organizational strength in the state have not only consolidated its hold but also demonstrated the vulnerability of a divided opposition, further weakening the India bloc's credibility. मैडम एक मिनट टेबलवर एक तो सर्व सुपरवायझरला सूचना आहे की आपल्याला जे पॅड दिलेले आहे पिवळ्या कलरचे ते जेवढे काउंटिंग एजंट आपल्या टेबल येतील त्यांना पॅड आणि पॅन आपण करू. हो सर. मैडम एक मिनट
टेबलवर एक तो सर्व There has been much debate over the role of communal mobilization in Maharashtra's electoral results, with some arguing that the BJP's Ek Hai To Safe Hai slogan played a pivotal role in rallying Hindu voters. While this narrative holds some weight, it's important to remember that religious consolidation alone cannot guarantee electoral success. Had this tactic been and the ultimate deciding factor, the BJP would not have fallen short of securing an outright majority in the 2024 Lok Sabha elections. The truth is far more nuanced. The BJP has effectively combined appeals to both political nationalism and economic welfareism, creating a platform that resonates with a broad spectrum of the electorate. This approach has proven to be a more sustainable strategy than reliance on religious unity alone. जर त्याच्या मतमोजणीला सुरुवात करायची नाही तर त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था वर स्टेजवर करण्यात आलेली आहे. मी दिलेल्या प्रत्येक सूचनेकडे बारकाईने लक्ष देतील. एक्झॅक्ट 8 बजे सुरू हो जाएगी. उसके 8 ते 14 परिणाम तुम्ही आहात शिपायासोबत या मतमोजणी कक्षामध्ये येतील. जर त्याच्या मतमोजणीला सुरुवात करायची नाही तर त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था वर स्टेजवर करण्यात आलेली आहे. मी दिलेल्या प्रत्येक सूचनेकडे बारकाईने लक्ष देतील. एक्झॅक्ट 8 बजे सुरू हो जाएगी. उसके 8 ते 14 परिणाम तुम्ही आहात शिपायासोबत या मतमोजणी कक्षामध्ये येतील. Meanwhile, in Maharashtra and beyond, the BJP has succeeded in presenting itself not just a party of cultural conservatism, but as the standard bearer of political nationalism and economic welfareism. This strategic positioning has enabled the party to connect with the wide array of voters, from urban professionals to rural workers. The key to the BJP's success lies in its ability to balance populist economic policies with its broader nationalist agenda. While its opponents focus on ideological debates, the BJP has managed to tap into the tangible issues like infrastructure development, job creation and welfare schemes, which resonate strongly with the voters. For BJP's recent victories serve as both validation of its strategy and a springboard for its governance agenda. जश्न शुरू हो गया है आप लोगों का यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं. दादा का 2500 हो गया है. 25,000 के ऊपर हो गया. इसका मतलब 1 लाख के ऊपर जाने वाले अभी 15 फेरी बाकी है. 15 फेरी में एक पूरा लीड जो रह गया वो लाख के ऊपर रहेगा. इसके वजह से हमको जानकारी थी कि ये होगा, इसलिए हम फटाके फोड़ के वो जल्लोश कर रहे हैं. अभी क्या चाहते हैं आप लोगों को, क्या उम्मीदें थी कि दादा जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था इलेक्शन प्रचार के दौरान. इलेक्शन प्रचार के दौरान ये सिर्फ था कि बहुनी करने का प्रयास किया था, लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट किसने की, इसलिए पूरे का पूरा तालुका और बारामती सिटी दादा के पीछे खड़े हो गया. मुख्यमंत्री बनाने की ऐसी भी मांग है, आप लोग की क्या भावना है उसको? हमारी मांग यही रहेगी कि दादा एक कैपेबल लीडर है जो महाराष्ट्र को हमेशा आगे लेके जा सकते हैं. इसके वजह से हमको चाहिए कि दादा मुख्यमंत्री बनने चाहिए. आपकी क्या भावना है? आज जश्न शुरू हो गया है. हमारा जश्न तो पहले से ही चालू था, रहेगा हमेशा. दादा एक ही बनेंगे, दादा एक ही है महाराष्ट्र के और एक ही बनेगा. एक ही है, अजीत दादा है. जोश तो बहुत है और 1 लाख प्लस जब आएंगे तब बाकी का जब माहौल बदलेगा, पूरे महाराष्ट्र में बदल दिया है. महायुति का सरकार ही बनेगा. तो अभी दिखा दिया है, लोगों ने भी दिखा दिया है कैसा क्या हो रहा है. बंपर लीड मिळाली आहे दादांना आणि महायुतीचे पण बंपर नंबर येतात. काय तुमची
अपेक्षा होती आणि कसं ते अपेक्षा होती तेच झालंय? अपेक्षा तर होतीच आमची, लाखाच्या वरती जाईल, पण साधारण शक्यता डिपॉझिट बी जाऊ शकतं, काही सांगता येत नाही. दादांची बारामती, दादांचा विकास आणि सगळी दादांची लोक आहेत. ज्या प्रकारे प्रचार झाला, ज्या प्रकारे सगळी गोष्ट आपल्या समोर आली की साहेब पण आले, साहेब पण बोलले, त्यात आपली काय भावना होती? साहेबांवर बोलणं एवढं आम्ही तर काय मोठं नाही, आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी साहेब मोठेच आहेत. पण जे दादांवरती प्रेम करतात लोक, दादांनी विकास कामं केली, दादांनी लोकांची कामं केली, एक ग्राउंड लेवल पासून ते मोठ्या लेवल पासून सगळ्यांना दादांनी हाताला धरून कामं केलेली आहेत. त्यामुळे सगळ्या लोकांना दादांबद्दल आदर आहे, प्रेम आहे आणि त्याच्यामुळे हे मताधिक्य तुम्हाला दिसून येईल. आता खूप जोरात जश्न होणार आहे. बारामती सगळी गुलालानी भरणार आहे. त्या मोठे मोठे JCB भरून गुलाल येतात आहेत. आता तुम्ही बघचालच. The India bloc's fragility has been on full display in recent elections. While the Congress party might still be holding on to its place as a senior partner, questions are increasingly being raised about the ability to lead its opposition. The party's inability to forge strong alliances with regional players or make significant electoral gains in crucial states like Maharashtra and Jharkhand exposes deep structural weakness within the opposition coalition. In Maharashtra, the Congress's weak showing has cast a shadow over its role in the India bloc, with the party's failure to secure meaningful victories potentially leading other regional partners to reconsider their future with the grand old party. For now, the question is whether this fragility will lead to a decoupling from the Congress or whether the opposition can still hold its alliance together. बहुत बड़ी जीत है। मैं महायुति के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक जीत है। बहुत सारी चीजें को मैं क्रेडिट दूंगा, स्कीम्स पे और जिस प्रकार से ऑपोजिशन नेगेटिव प्रचार कर रही थी, वो भी एक बहुत बड़ी जीत है। मैं महायुति के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक जीत है। बहुत सारी चीजें को मैं क्रेडिट दूंगा, स्कीम्स पे और जिस प्रकार से ऑपोजिशन नेगेटिव प्रचार कर रही थी, वो भी एक बहुत बड़ी जीत है। मैं महायुति के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक जीत है। बहुत सारी चीजें को मैं क्रेडिट दूंगा, स्कीम्स पे और जिस प्रकार से ऑपोजिशन नेगेटिव प्रचार कर रही थी, वो भी एक बहुत बड़ी जीत है। मैं महायुति के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक जीत है। The Congress party's performance in both Maharashtra and Jharkhand highlights its growing irrelevance in the state-level politics despite its presence in the India bloc. Congress struggled to make an impact in Maharashtra assembly elections. The party's inability to organize effective grassroots campaigns, particularly in regions like Vidarbha, and its failure to offer a coherent state-specific agenda left in floundering in Jharkhand. Although the India bloc emerged victorious, Congress's contribution to the win was minimal, relying largely on the local leadership of Jharkhand Mukti Morcha, that is JMM, rather than on its own political machinery. This reflects a critical reality. Congress needs to rebuild its grassroots connections if it hopes to regain relevance in regional politics. हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे मध्य में आनंद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। उनका बहुत बड़ा अभिनंदन गैलरी के अंदर किया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको लेकर आपके मध्य में आने वाले हैं।
मैं आपकी तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का अभिनंदन कीजिएगा। हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में आगे ताली बजा के अभिनंदन कीजिएगा। यह आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए पुष्प वर्षा उनके ऊपर हो रही है। वो हमारे मध्य में थोड़े ही क्षण में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उनको रिसीव करते हुए आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए भी लगातार हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं। ये आपकी ऊर्जा, ये आपका स्वागत है, कहीं ना कहीं उनको भी ऊर्जा देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे मध्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आदरणीय, मैं अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्प माला द्वारा और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प माला द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी नेतागण आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करते हुए पुष्प माला पर ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे आप सब उनका। मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी। मैं अब निवेदन करूंगा। One of the key lessons from the Jharkhand and Maharashtra elections is that national narratives and anti-BJP rhetoric alone are not enough to secure electoral success. In Jharkhand, the JMN's focus on state-specific issues like tribal welfare, employment and rural development allowed the party to resonate deeply with the voters. The Congress, by contrast, failed to present any such localized vision, choosing instead to rely on national issues. Similarly, in Maharashtra, the Congress's fixation on criticizing Prime Minister Modi distracted from the urgent need to address the local concerns of voters to have any hopes of reclaiming its influence. Congress must shift its focus from national stage to local, ensuring that its campaigns reflect the specific needs of the state. आप लोगों के लिए भी है। योगी जी का मिठाई खिलाते हो। लीजिए आप खाइए। आप योगी 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 मिठाई खिलाइए। भाईचारा इससे करते हैं, ना बोलते हैं ना कुछ। आइए 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 आइए। योगी जी को मीठा खिलाया बना योगी अखिलेश जी देख लीजिए, सरकार के लिए पुनः बधाई। ये 9 में 7 नहीं, ये 9 में 9 ही हम लोग मानते हैं। सर खिलाइए 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 खिलाइए। की प्रचंड जीत जो विनीत कुमार सिंह एडवोकेट पूर्व उपाध्यक्ष, ये तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और महाराज जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 9 में 7 सीटों पे जीत और महाराष्ट्र में इतनी प्रचंड जीत की हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी का विजन था कि महाराष्ट्र भी जीते और एक तरीके से हम लोग जीत गए हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जीत ये बता रही है कि बटोगे तो कटोगे नारा नहीं मंत्र हो गया है। हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा चीज है। आज का जीत जश्न का जीत है। ये 2027 के लिए एक संदेश है कि हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में मनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद अजहरुद्दीन। किस तरीके से जश्न मना रहे काशी में आप लोग? आज हम लोग बहुत
मुसलमान काशी के बहुत उत्साहित हैं कि महाराष्ट्र में जो माननीय योगी जी ने एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे, उस पे हम लोग एक है तो सेफ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो उसका एक उदाहरण आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। काशी के मुसलमान बहुत ज्यादा उत्साहित है। हम एक है तो सेफ है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद हम लोग यहाँ से पेश करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उस पर जिस हिसाब से हम लोग जीत दर्ज किए हैं, उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। मेरा नाम ताज। Meanwhile, the Congress party's over-reliance on an anti-Modi strategy has proven to be a double-edged sword. While this narrative might have worked in some elections, its continued use has increasingly alienated voters who might have been open to alternative political ideas. In both Maharashtra and Jharkhand, Congress's focus on attacking Prime Minister Modi allowed the BJP to consolidate support among voters who otherwise might have been undecided. Moreover, the Congress failed to build a credible narrative of its own that could rival the BJP's robust vision for governance. The party's repeated anti-Modi rhetoric not only failed to win over swing voters but also pushed those voters into BJP's fold. To regain relevance, the Congress must pivot away from this confrontational approach and focus on solutions and the state-specific issues. हेलो आज यहाँ जरमुंडी विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान यहाँ बाबा भोलेनाथ के इस पावन धरती पर आए हुए हमारे जरमुंडी विधानसभा के आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और अमरेन गोबा भूया मिश्रा मदियाड़ा गुणित नायके को सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा झारखंडी जोहार जोहार जोहार। बहुत कम समय के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। आज आपको मालूम है तो तमाकू खीरा बहुत कम समय के लिए आपके बीच में आए हैं। आपको पता है ये चुनाव। And that was our today's big story. For more news and updates, keep watching CBR English.